Morning children. Today I am going to make you understand first biology followed by mathematics. So biology, we were learning about the introduction to the biology chapter. So in introduction to the biology chapter there were several terms of the branches of the biology. So it's not only comprises of only botany and zoology, but there are so many branches are there of it. Let me make you understand starting from the first one called bacteriology. Bacteriology is the study of bacteria, and I want to show you the bacteria, which one is the bacteria and which one we are saying as bacteria and how do they look like. Let us see. Here you can see in the pictures there are so many bacteria are there and they are of different sizes. The first one, the top most part, you can see this is called Streptococcus pneumonia. So pneumonia के लिए जो bacteria जरूरत होता है, this is called Streptococcus pneumonia. Pneumonia is one disease which is caused by the bacteria. Then Clostridium tetani, Treponema pallidum, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया से है यहाँ पे. एंड जैसे यहाँ पे लिखा गया साल्मोनेला टाइफी एंड वेवरियो कॉलेरा. कॉलेरा जो डिजीज है दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया बिकॉज इट्स अ बैक्टीरियल डिजीजेस. एंड देर आर सो मेनी बैक्टीरियाज देयर and they look very big in this place because they are observed under the compound microscope. Then comes virology. Study of viruses is known as virology. Here are some examples. I am showing to you coronavirus here. That is a very dangerous virus which is spread all around the world, and today its impact on the human society is dangerous. Not only for the human society but also it is affecting to the animals too. But you can see here coronavirus is a Baltimore group 4 plus ssRNA. There are not only group 4 till group 5 coronavirus are there. You can see it's written on what are the structure, how do it look like and how do it made up of. It is made up of the glucose called glycoprotein spikes, RNA plus nucleoprotein also. Rotavirus bhi hai, influenza virus and coronavirus, they are looking like same, but coronavirus is 10 times dangerous than that of the influenza virus. How do they look like? Their structure is very small. They are observed under the electron microscope, so large it looks like. One more example of the human immunodeficiency virus called it as HIV, which is causing AIDS. एंड उनका कैसे कैसे सब स्ट्रक्चर से कैसे बनता है वो सब चीज़, कितना स्ट्रक्चर छोटा स्ट्रक्चर है वो सब दिखा गया है यहाँ पे. बहुत छोटा स्ट्रक्चर है दिखने के लिए बट इसमें सब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखा गया है बच्चों. Here it comes the next one called mycology. Study of the fungi is called as a mycology. And here you can see the mushroom which one we are eating is an example of the mycology only. And not only this mushroom which one we are eating, some mushrooms which do not eat, they are growing in the woods only, stems of woods. When the water falls on that, it's called as the study about that is called mycology. Next comes algae. तुम लोग देखे होगे शायद बच्चों, जैसे हमारे छत्रों पर में भी बहुत सारे पॉन्ड्स है जो कि यूज़ नहीं होता है या फिर बहुत यूज़ करने के बाद बहुत लोग यूज़ करने के बाद उसे वहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ सब्सटेंसेस उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, मतलब तैरता रहता है. वो सब चीज़ को algae बोलते हैं हम लोग. देख सकते हो आप लोग पानी के ऊपर कैसा है स्ट्रक्चर्स, कैसे लोग उसके अंदर गए हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर इन ओडिया वी से पोंको. Here is another structure of that. Next comes entomology. Study of insects is known as entomology. You can see the insects just like locusts, worm, beetle, ant, spider, mantis, even grasshopper also, scorpions, then called scolopendra. These all are the examples of the insects. Then comes ichthyology, guys. Study of the fishes is known as ichthyology. Fishes, I think you all know. फिशेस के बारे में तुम लोग जानते हो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा उसको स्ट्रक्चर्स. देन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर्पेटोलॉजी. स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स आर नोन एज हर्पेटोलॉजी. हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ द रेप्टाइल्स. एक ऐसा दिन था जब रेप्टाइल्स हमारे पूरा का पूरा दुनिया में राज करते थे. दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ डायनासोर इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स ओनली. लाइक लिजर्ड, स्नेक्स के बारे में पढ़ना उसे बोलते हैं. इवन क्रोकोडाइल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द हर्पेटोलॉजी. स्टडी अबाउट देम इज नोन एज हर्पेटोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ द बर्ड्स इज नोन एज द ऑर्निथोलॉजी. And anatomy, study of growth structure of the organs in the organism is called as anatomy. Let me show you an example. Here just bottom part you can see a kidney has shown anatomic growth structure.
So just like kidney, जैसे दिया गया anatomy study of the growth structure of the organs of an organism, that may be kidney, that may be brain, that may be heart, that may be lungs, that may be liver, उनके बारे में each and every organ का कैसा फंक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसके बारे में पढ़ने के लिए हम बोलते हैं anatomy. Next comes morphology. You can see the birds के यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया interpretation structure, मतलब that may be outside also. Form structure of the plants and animals includes essentially the understanding and interruptions of the internal and external structure. Here is the morphological part. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया morphology of a male shrimp, Carparella mutica is the name, scientific botanical name of this plant. इसका हर एक हिस्से में क्या क्या है, कौन सा वाला पार्ट है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ द माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ द टाइनी बीट्स द बॉडी टिश्यूज लेवल. टिश्यू लेवल के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, यहाँ में कुछ एग्जांपल्स उसका टिश्यू लेवल का, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इसके बारे में. साइटोलॉजी स्टडी अबाउट द सेल्स. सेल्स आर फाउंड प्लांट सेल और एनिमल सेल, आप लोग देखे भी होंगे, बुक में भी अवेलेबल है. फिजियोलॉजी स्टडी अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द पार्ट्स. जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, रुको. देखिए यहाँ पे नीचे जस्ट एनाटॉमी के ऊपर मॉर्फोलॉजी है, उसका राइट साइड जेनेटिक्स, देन उसका राइट साइड जो नीचे लाइव प्रोसेस लिखा गया है फिजियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ईच एंड एवरी प्लांट पार्ट्स, उसे बोलते हैं हम लोग फिजियोलॉजी. आफ्टर दैट, आफ्टर फिजियोलॉजी व्हाट कम्स द नेक्स्ट? Embryology study about the formation and development of embryo of the plants and animals. Embryo you all know. You can see here एक छोटा सा फोटोज़ का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एक फोटोज़, एक बेबी ग्रो करता है अपना माँ का पेट में, इज कॉल्ड इन द ओम of the mother, how it grows and life processes it takes out is called as embryology. Taxonomy is science of naming, grouping and classifying the plants. देख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ द टेक्सोनॉमिकल रैंक्स दिखा गए हैं यहाँ पे. स्पीशीज, ग्रुप ऑफ स्पीशीज मैक्स, जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस मैक्स, फैमिली. सिमिलरली द लास्ट वन डोमेन बनता है यहाँ पे, एंड उसका नाम कैसे दिया जाता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द रेड फॉक्स? इज कॉल्ड वॉल्प्स वॉल्पिस. Even for the snakes, we are just like for the Odia, we say Nagosapo. In English, we say Naja Naja. These all the namings are undergoing taxonomy. Ecology comes the study of relationship of an organism to the both biotic and abiotic component and environment. बायोजियोग्राफी, एक इलाके में कितना ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड एनिमल्स रह सकता है, कौन सा एनिमल्स रहेगा, जैसे कि डेजर्ट में रहता है कैमल, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए बायोजियोग्राफी बोलते हैं. स्टडी अबाउट द प्री हिस्टोरिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, दिस कॉल्ड एज देखिए आप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक प्री हिस्टोरिक लाइफ लाइक पैलेंटोलॉजी. एक ज़माना था जो कि तभी डायनासोर्स एंड उनका ह्यूज स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे इस अर्थ के ऊपर, उनका बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना एंड उससे क्या क्या बनता है उसके बारे में पढ़ना, उसको बोलते पैलेंटोलॉजी. इवोल्यूशन स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कब कैसे लोग थे, हम लोग बोलते हैं ना वी ऑल आर वी आर द पार्ट्स ऑफ द एप फैमिली. एप से हम लोग बने हुए हैं, तो कैसा आया, कब उनका जनरेशन हुआ, इस सब के बारे में बोलते हैं इवोल्यूशन. जेनेटिक्स ट्रांसमिशन ऑफ द बॉडी फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. जैसे हम लोग दिखते हैं आज, हमारा बिहेविंग जैसा है, हमारे पापा के और हमारे मामा के साथ मैच होता है या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट के साथ कुछ ना कुछ मैचिंग करेगा, एंड ये सब चीज़ को जेनेटिक्स बोलते हैं. पैरासाइटोलॉजी देन study about the parasites. There are two types of parasite, endoparasite and ectoparasites. Pathology, diseases of the plants and animals studied is called pathology. Immunology, causes of immunity के बारे में पढ़ना है, हमारे बॉडी के अंदर कैसे इम्यूनिटी प्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ने के लिए इम्यूनोलॉजी बोलते हैं. यूजेनिक्स, साइंस विद द एम्स टू improve the human race through the controlled heredity is called eugenics. Then comes biochemistry. The last 25 terms I have made you understand now. Biochemistry, study of chemicals and reactions that take place inside the living beings. जैसे कि हमारा बॉडी के अंदर से एक चीज़ होता है, जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग में बोलूँगा, पहला वाला टॉप को पूरा देखिए आप लोग, मार्क कीजिए. यदि हम लोग कुछ ब्लड सैंपल लेके जा रहे हैं, वहाँ से कुछ डीएनए निकालेंगे, उसके बाद डीएनए का जैसे दिया गया हमारा रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंजाइम्स, जब डीएनए के पास मतलब ब्लड सैंपल से जब कुछ एंजाइम्स नहीं मिलेगा उसे धीरे धीरे से वहाँ से एक स्मॉल इलेक्ट्रोफोरोसिस उसे बोलते हैं, स्मॉल माइनर स्ट्रक्चर जो कि डीएनए फ्रैगमेंट उसे बोलेंगे, डीएनए स्ट्रैंड बोला जाएगा, वो सब चीज़ ऑब्जर्वेशन किया जाएगा. उसके बाद इसे क्या कहते हैं ना, ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करने के बाद उसे ऑब्जर्व किया जाता है इनक्यूबेशन पीरियड के, जैसे कि 4-5 दिन तक इनक्यूबेशन विद लेबल्ड प्रूफ्स. उसके बाद उसका एक्सरे
निकाला जाता है एंड जिसका डीएनए फिंगरप्रिंट्स निकाला जाता है, जैसे दिया गया यहाँ पे। ये दोनों का पेरेंट्स का एज वेल एज बच्चे लोगों को मैच करते हैं पता चलने के लिए कि इफ द चाइल्ड इज बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर पेरेंट और नॉट इन एनी केसेस। So these are the 25 terms. Today I just would like to give you this all the work. Please learn this and learn and reply me tomorrow. Any doubt you can ask me tomorrow too.